ये जो 2025 का इलेक्शन है, इसकी जो बुनियादी खासियत है वो ये है कि ये लिबरल पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, उसकी कमी की वजह से ही कॉल किया गया था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लिबरल पार्टी जो है वो 2015 में इक़्तिदार में आई थी। जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, बड़े पॉपुलर, बड़े हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने काम भी ऐसे किए कि लोगों की जो है वो सपोर्ट उनके साथ हुई। लेकिन फिर उसके बाद उनकी सपोर्ट जो है वो कुछ वजूहात और उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनकी वजह से जो है वो कम होती चली गई और फिर 2019 का जब इलेक्शन था, तो उस 2019 के इलेक्शन में लिबरल पार्टी को एनडीपी की सपोर्ट के साथ हुकूमत बनानी पड़ी। तो ये हुआ 2019 का मामला। उसके बाद कोविड आ गया और फिर कुछ और ऐसे काम किए जस्टिन ट्रूडो ने जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो और नीचे जाना शुरू हुई और 2021 में उन्होंने फिर इलेक्शंस कॉल किए। लिबरल पार्टी इक़्तिदार में तो रही, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती चली गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि लिबरल पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म यानी कि जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिज़ाइन करना पड़ गया। बहुत उनको बैकलैश मिल रहा था अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और फिर मार्क कार्नी जो है, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब मार्क कार्नी जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे अब एक नया मैंडेट चाहिए। मुझे लोगों की सपोर्ट लेनी है और अगर मुझे अपनी पॉलिसीज़ जो है उनको सही तरीके से, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर मुझे ये करना चाहिए कि मैं लोगों से एक मर्तबा फिर जिसे वो कहते हैं कि एतमाद का वोट लूँ और असेंबली से एतमाद का वोट ना लूँ, लोगों से एतमाद का वोट लूँ और इसीलिए फिर उन्होंने इलेक्शंस कॉल कर दिए और अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं 28 अप्रैल। Now in this gathering I found someone who is wearing this keffiyeh and I would want to ask why is she wearing this and what is in her mind? Hi, how are you? I'm good, thanks. Your name is Kim. Kim. So, Kim, tell me about this kafia and why are you wearing this? I'm wearing this keffiyeh. We're here to listen to Mark Carney's platform, which is talking about independence and dignity for Canada. And I think everybody has the right to have independence and dignity. And that's what this keffiyeh stands for me. What message do you want to give to the people of the world about this Palestinian issue? I want people to start looking at Palestine as an issue. It hasn't been actually looked at deeply enough to recognize that it's been a genocide and there is a lot of injustice happening right now. And why are people afraid to use this word, genocide, the G word? I see that so many people are not using this word in their conversations. Um, I'm not sure why they would not. It is obviously a genocide by any definition. I think it is a political reason and it has been politicized. I think there are powerful people that don't want it recognized as a genocide. So, do you think that the liberals should do something about this issue? I think liberals should recognize Palestine needs assistance and that Palestine should be stood up for. Palestine should be spoken for, like many other countries in the world. Palestine should be recognized as its own state with its own people. Why are you supporting liberals? Because I believe that liberals the right way to go for the betterment for our country. What's the one thing about Ghani that you like the most? I like the way he's standing up for Donald Trump. I really like that so much. And, he's the right person for Canada due to the situation that is going on in the US right now. I think he's the right candidate. And I hope everybody votes for him. Why are you supporting liberal? Because of Mark Carney. Because I want to build this country. I want to build it across. We've talked about interprovincial trade barriers. He's knocking them down. He's talking about, building infrastructure across this country. That's what he's going to do. And Mark Carney's got a strategic mind. He knows finance cold. I mean, I think this man is a winner. Now, I think he's what this country needs right now. And I've never voted Liberal before in my life, ever. I've never worked for the Liberals. I've never given any money to the Liberals. But this time is different. It's for Canada. What about you, Val? I'm voting for the Liberals because of Mark Carney, and
And because Donald Trump is talking again today about the 51st state, and there's no way. And I just think that Bolivar is just, too much like Donald Trump. It's anti-woke this, taking funding from research funding from universities. It just goes on and on and on. There's just irreconcilable differences. Vote for Liberal is vote for a strong Canada. लिबरल जी ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਾਰ ਨੀਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर एवरीवन ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੋਂ G7 ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਬੈਠਾ ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ And supporting Liberal for Canada because that says everything because Mark Carney is the only candidate that can actually protect Canada from the United States and he is the economist that can do everything for Canada. He makes me feel safe. And I just think he's fantastic. And with him, we're going to be fantastic. ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜੀ ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ USA ਸੋ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਲੀਡਰ who can move forward Canada in a strong way. अच्छा जी माहौल जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो गया है जिस तरह हमारे यहाँ पर होता है देशों में कि कोई म्यूजिकल प्रोग्राम भी होता है कोई गाने के चल रहे होते हैं कि यहाँ पर मौसीकी का इंतजाम किया हुआ है और एक आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है अभी तो मेरे पर देखो करे तो मतलब ये है कि काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट है यहाँ पे और इनका कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम है फिर उसके बाद आगे की कोशिश होगी अच्छा अब ये भाई की गाने की महफिल है ये चल रही है लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर इस तरह के गाने नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में रेसों चल रहे होते हैं दिलाती माहौल रहता है और गोश्त फरोश जज्बा रक्स ये वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती यहाँ पर ये टीमें गाने जो कि यहाँ पर लोग पसंद करते हैं वो गा रहे हैं ये भाई और इसमें ज़ाहिर है हम का पैगाम है मोहब्बत का पैगाम है और ये देखें लोगों को पसंद भी है भाई ये वाले गाने हमें तो लग रहा होता है कि ये क्या हो लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है परफॉर्मेंस के साथ तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ से बिल्कुल ये मामला मुख्तलिफ है Thank you for everything you're doing. Thanks for having me. It is great to be in Canada's fastest growing, most diverse community. जी तो कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं और उनकी तकरीर हो रही है मेरे पीछे इस वक्त तकरीर चल रही है लोगों का बड़ा जोश व खरोश है लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और कार्नी के नारे भी हो रहे हैं तालियां भी बज रही हैं बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं अपनी इस तकरीर में और जो सबसे अहम बात उन्होंने की वो तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को साफ ललकारा है एक तरीके से और उन्होंने कहा है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाए तो अब हम उसको जवाब देंगे और ये एक ऐसा जवाब होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चूँकि इस मामले का आगाज़ किया है तो अब हम भरपूर वार करेंगे उन्होंने ये कहा कि हम टैरिफ जो है जवाबी टैरिफ नाफिज करेंगे जवाबी टैरिफ लागू करेंगे अमेरिका पर ताकि अमेरिका को पता चले कि कनाडा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम है एक इंडिपेंडेंट कॉम है इसके अलावा उन्होंने जो बात की वो ये थी कि हम अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उन पर बिल्कुल ही आँच नहीं आने देंगे उन्होंने कहा कि हमें कनाडा को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाना है ये उन्होंने बड़ी अहम बात की फिर उन्होंने कहा कि हम हाउसिंग के हवाले से जो प्राइसेस है उस पर भी उन्होंने बात की कि उसको किस तरीके से डील किया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल एड है लोगों की उसके हवाले से भी काफ़ी इक़दाम करेंगे तो काफ़ी सारी अहम बातें उन्होंने की जो कि ज़ाहिर है उनकी कैंपेन का हिस्सा है ये देखिए जी ये इस वक्त
बड़े बेखरोश से उनकी तकरीर पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनकी बातों पर तालियां भी बज रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लोग मैंने देखे उसमें बच्चे भी नज़र आए मुझे, बूढ़े भी नज़र आए, जवान भी नज़र आए, हर एज का शख्स यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके अलावा यहाँ पर सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है। तो ये सब लोग, चूँकि सरी का जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है कि जिसमें जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है वो ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए उनकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा वोटर बेस है। इस वोटर बेस को अपील करने के लिए आज सरी में मार्क कार्नी मौजूद हैं और उनका खिताब चल रहा है। तो जनाब, मार्क कार्नी साहब के जलसे का इख्तिताम हो गया है। कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं। ऑल इन ऑल एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के सियासी जलसे मैंने अटेंड किए हैं, अगर उन जलसों से इसको कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। मतलब एक तो वज़ीर आज़म इस वक्त का मार्क कार्नी साहब, लिबरल पार्टी के वज़ीर आज़म, उनका जलसा एक इंडोर हॉल में ये जलसा था। फिर अगर लोगों की तादाद की बात की जाए तो तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार के करीब लोग यहाँ पर आए होंगे और उनकी तकरीर लोगों ने सुनी, बड़ी पज़ीराई की लोगों ने उनकी। माँ कार्नी साहब भी लोगों में घुल-मिल गए, लोगों से हाथ मिलाए, लोगों से बातचीत की, उनकी बेगम साहिबा ने तकरीर की। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था और अब इसका जो असर है वो नज़र आएगा हमें 28 अप्रैल को, जब लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे और बताएँगे कि उन्होंने किस पार्टी को चुना है कि वो इंतखाबात के बाद कनाडा पर हुकूमत करें। और जो पोल्स हैं वो तो लिबरल पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो बता रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें असल में तो इलेक्शन डे का इंतज़ार करना होगा ताकि पता चले कि अवाम का झुकाव किस तरफ है।